want to encourage other people who are moving forward in this journey. And I want to even clap for all the incredible warriors जिनका मैंने अब sheets prepare की थी. So can every one of us give some hearts and superpower to Aman before I introduce? Yes, she was my one-to-one client. She showed up very little. She's a full-time working mom. She is a school teacher, right? So और इसीलिए and another thing मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में. Okay, so now coming on to, thank you so much. I'm honored, literally honored, Aman, that you joined today and you are here with me today. So, little bit background about Amandeep. Okay, she's MSc in mathematics and BSc is in her toolkit, and she brings along 14 plus years of rich classroom magic. But she's not just a seasoned educator. She's a CBSE resource person, a certified child psychologist, and an emotional health educator who's redefining how we nurture young minds. And she's also a mom of a super curious toddler. Her inspiration and reason to explore every new age learning kit. मुझे नहीं लगता कि इनका घर जब मैं विजिट करूं तो कोई ऐसा किट होगा जो इन्होंने नहीं एक्सपेरिमेंट किया होगा, right? Being it Flinto box to Kaizen. She's not just teaching kids, she's living their learning journey alongside them because she's so passionate to work with kids. And uske sivai, she's also NCC C certificate. She believes in discipline more than mujhe nahi lagta ki, I have seen so many medals, so many trophies. So not only here, she's physically very fit. So NCC getting C certificate is not an easy thing, those who know that, right? So believes in disciplines plus emotional strength equals to unstoppable kids. And she's also having a YouTube channel जिसको अब हमने ये जो vision दिया है, she has named it Emotional Ninja Club because she is the mind behind Emotional Ninja Club actually में, right? It was just my idea in a way, but entire mind, how we are going to do it, what is to be done is her mind behind it. And it's which is a growing movement. You can check on her YouTube channel as well. And she's decoding feelings, building confidence, and she helped children master the life skills. And she has trained with n number of people, I would say. Usme se I'm khushkismat that she has worked with me as well. She has worked with Jim Quick. She has worked with Vishane, Be Extraordinary, if you know that Mind Valley. She has worked with Shalini Bhagat. She has worked with me, and she has also worked with Mr. and Mrs. Rajeshwari, who are hosting Parenting for You, if you have ever seen. So a lot of in her kitty. So it's really my pleasure and honor to have her today as a guest speaker with me. So over to you, Aman, if you can just say hi to all our audience before we move on to the questions which we are having from all the mothers for you today. Thank you so much for joining me Hello, today. hello. Am I audible first of all? Yeah, loud and clear. Oh, thank you so much. And I'm so excited. And such a long introduction. Oh my goodness. It's so No, it's so you. It's long. you. Thank you, Yeah. Japinder. Yeah. So thank you and welcome all the dear mommies. As Japinder has introduced me already, I'm Amandeep. I'm on a mission to blend logic, emotions, and life skills, creating a generation of kids who are just not smart, but are soul strong. So this is the vision what we are looking for, me and Japinder. And we are looking forward to it, and we need all your supports to make it a big success. Yeah. Thank Thank you you so so much. much Thank once you so again. much. And now I would also tell us, बहुत लोगों को शायद पता है, किसी को नहीं पता, but my authenticity has to be there if I talk that as a core value. And she's my real sister. And I'm honored to be blessed. But there is a very healthy boundary when we talk about this thing, right? And when we talk about Arya, and all our conversation are a very different level of conversation when we talk about क्या कर लें ऐसा बच्चों के लिए, right? And she is just like you guys, full-time working. She is in teacher in Army School, Army Public School, Panchkula. Okay, so I thought I should tell that before लोग कहें कि शायद इनकी खुद की sister थी इसीलिए इन्होंने इसको बुलाया. No, that's why I've given why she deserved this place with me to sit and talk as a guest speaker with me today. And I really want a round of applause from each one of you who's sitting here. Please switch on your camera if it's possible for you. And now Thank I'm you going so much. to take, guys, this is not the culture of inner parenting. Don't do conjusi when you are appreciating somebody. You want more, give more. You want more, give more. Can I expect some heart and clappings? Can I expect some good emotions before we start this session with a healthy note? If not, then
I think there is something lack in me that I'm not able to give you guys that shift to celebrate win from of a fellow mom in the community. कल आप भी यहाँ पे हो सकते हैं, right? So if you want to receive all that love, first start to learn how to give that love to a fellow mom who has walked this journey and come so far. So proud of you. Okay, so moving further. God bless you, whoever shared. God bless those who have not shared. Okay. So I'm going to take all the questions which I've received from so many moms in a lot of Yes. forums, because there is a always moms comes कि मेरे बच्चे को बहुत एंजाइटी हो रही है, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रेस में रह रहा है, right? So I want to know that a lot of mother ask, right, why is my child always angry even over small thing? ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों हो जाता है? So being a child psychologist, being a emotional health expert for kids, can you help our audience to understand कि why the child always gets angry over small things? Well, thank you for your question, Japinder. I would say I will begin with it actually that actually anger is like a mask as in of a deeper feeling like sadness, fear, helplessness. तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि बच्चा एंग्री 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 गुस्सा ही गुस्सा करे जा रहा है बट एक्चुअली वी शुड ट्रीट इट एज अ मास्क एंड वी शुड think about it that what is actually happening inside the child. So just think of like a pressure cooker कि उसमें प्रेशर डेवलप हुए जा रहा है हुए जा रहा है बट देयर इज नो आउटलेट देयर इज नो स्कोप ऑफ venting it out. So suddenly what will happen? It will just explode. So here my suggestion would be like don't see the anger as a behavior to stop कि इसको बस बंद करना है. So see as a message to decode. ये पहचानने की कोशिश करें कि एक्चुअली आपका बच्चा क्या फील कर रहा है उस मोमेंट पे उसके क्या चल रहा है. So I think that would be better for all of us to understand. एग्जैक्टली आई रियली मेंशन बिकॉज हमें खुद को भी तो जब गुस्सा आता है तो हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है. Exactly. वी आर नॉट एबल टू फाइंड द Yes, फीलिंग और इमोशन बीनीथ इट कि क्या मेरे मुझे किसी ने absolutely. डिसरिस्पेक्ट किया है, क्या मुझे किसी चीज ने Correct. ना बोली है, या मेरे हस्बैंड ने किसी चीज, लेकिन मुझे क्या मेरे बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी है, राइट? सो True. वो Yes. जो आया तो दैट इज समथिंग विच इज विनर. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप. सो माई सेकेंड क्वेश्चन इज why child shuts down when I try to talk? What do I do? ये यूजुअली बहुत सारी मदर्स का आता है कि जब भी मैं अपने बच्चे से बात करना चाहती हूँ मेरा बच्चा शट डाउन ही हो Mhm. जाता है. आई मीन दे डोंट Yes. फील लाइक टॉकिंग टू मी. और थोड़ी सी बड़े एज वाले Yes. तो फिर अपने रोलिंग द आईज एंड इवन दे वॉक एंड दे लाइक क्यों ही पूछ लिया. सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन यूजुअली कम टू अस. सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बिट मोर ऑन Yes, of course. Yes. Here to before I answer this question, just I want you to imagine like a turtle. Like what happens? Like a turtle, the more you tap the shell, what will happen? It will just more it hide hides. inside the Yeah. shell. Yes. So when the kids are not talking to us, we should not be pushy. क्यों नहीं क्या हो गया बताओ. So instead of doing that, we should be empathetic to them. So simply what we can do is we can just sit beside them and you can just convey a message to them like, hey, I'm there, I'm there with you. So whenever you are ready, whenever you feel safe, just come to me, let's discuss about it. So you know what? Silence speaks all the trust. So sometimes giving the space is what, and हमारे साथ भी तो होता है. Why we are just confined to the kids? It happens with us also. Like कभी कभी हमें बात करने का ही मन नहीं करता, and we take our own space, and we take our own time to talk to share our emotions in a better way. So ओके. that सो would be better. दैट्स ब्यूटिफुल. क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि इट्स समटाइम्स कि हमें बस उसके साथ बैठना है. सो Right. दिस इज नॉलेज आई थिंक लॉट ऑफ टाइम इवन आई हैव यूज्ड कि आप ऐसा इमेजिन करिए आप एक पार्क में हैं और एक बेंच पे आपका बच्चा बैठा है एक इमोशन के साथ, rather देन गेटिंग यू आल्सो हाई ऑन इमोशन, यू जस्ट हैव टू गो एंड सिट ऑन दैट बेंच विद योर चाइल्ड फॉर सम टाइम. और ये Right. एक ऐसी चीज है एंड अगर आप बहुत अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग है आपकी आपके बच्चे के साथ, अगर उस खाते में Yes. रोज कुछ कुछ डाला है तो आई थिंक देयर विल बी अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन चाइल्ड एंड द पेरेंट्स वेयर दे नो एंड दे गिव ईच अदर दिस स्पेस. इवन कई बार ये स्पेस हमें भी चाहिए होती है बच्चों से. सो यू थैंक Correct. यू फॉर टेकिंग, आई मीन या दैट टर्टल थिंग रियली हेल्प कि उसको और टैप करोगे तो वो और अंदर छुप वो जाएगा. अंदर उसको ही टैप हाइड होगा करना ना, वो बंद तो करो छुप थोड़ी देर. जाएगा.
Yeah, Yes, great. yes. Yeah, thank you. So moving on to our next question. How can I reduce my child's screen time without a daily argument? क्योंकि स्क्रीन टाइम लोगों को लगता है कि जितना स्क्रीन देखते हैं उतना ज्यादा ये जो गुस्सा, डिसरिस्पेक्ट, ये जो इनका मिसबिहेवियर हमारी तरफ होता जा रहा है, तो सब लोग एक ना स्क्रीन टाइम को पकड़ के इट्स हैज बिकम अ बिग थिंग फॉर पेरेंट्स nowadays. So can you help us like how, because ये question है, so I really want to hear the answer from you. How can I reduce my child's screen time without a daily argument? Though I have certain healthy boundaries around it. Yeah, please. That's great. That's great. Yeah, it's really great that you asked this question, and I'm sure 80%, more than 80, maybe 80+% parents are facing this problem. And I met often many parents who ask me the same question. So, सबसे पहले ना dear mommies, I would say, और मेरी bold statement हमेशा रहती है that screens are not our enemies, but True. disconnection is. स्क्रीन हमारे एनिमीज बिल्कुल नहीं है, उनको हमें कैसे यूज करना है, बट दैट इज अ चैलेंज. So what I personally also do, and I would suggest you to all to do, instead of removing screens, we should be replacing them emotionally engaging alternatives. Like हम उनको अपने स्क्रीन तो हम बोल देते हैं कि बंद करो, मत देखो, टू मच मत देखो, बट what alternative we are giving to them? And this is, something happened with me also personally. One fine day, like I was telling my kid also, like, "Ban kar do, ban kar do." Uh, After, 5, 7 minutes, suddenly she switched off the TV and she gently came to me. And she asked me, "Mama, मैंने TV तो बंद कर दिया, but what next? What should I do now?" And then at that point, I realized it. कि हम ये तो बोल रहे हैं कि बंद कर दो, but बंद करके what next? So what you can do is Hmm. you can just, what as in you can have your family games, movements, or meaningful one-to-one time we can have. And just think about it. That don't pull the toy away. Hand them Hmm. something better. Hmm. सिर्फ बंद करना is not a solution. Just alternative दीजिए. That would be, I'm sure it will be a great help to everybody. यस, बेसिकली बिल्डिंग दैट इमोशनल ब्रिज ना, आपने एक एडिक्शन से उसको बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकाल के Yes. अकेला मत बिठाओ ना उसको, कुछ दीजिए कि ओके ये हमने कर दिया, लेकिन 1 मिनट उसके साथ वॉक तो करिए कि अब आगे क्या करना है. Mhm. एंड Perfect. या इट वर्क्स बिकॉज दैट्स अ बिग थिंग ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर कि वी शुड नॉट, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी है, आवर किड्स आर बॉर्न विद इट. यू कांट डिवॉइड You समथिंग कि can't घर take से away. टीवी, You एक ये can't तो वो take बात होगी ना, away. घर पे टीवी मत हो, घर पे टीवी ना हो तो देखना बंद कर देंगे, Exactly. घर पे फोन ना हो तो देखना Hmm. बंद कर देंगे. बट Hmm. अगेन, हाउ माइंडफुली यू आर यूजिंग इट. Yes. टेक्नोलॉजी सेम है, बट आपको ये नहीं करना कि उसको बंद करवाना है. वो सेम इंफॉर्मेशन है, सेम टेक्नोलॉजी है, बट हाउ यू हैव टू टीच योर किड्स हाउ टू यूज इट. एंड उसके लिए पहले Yeah. खुद को Here, सीखना है. I just want to add one more thing here, that, uh, make sure your kids is making a smart choice. It's not, I Hmm. would say, it's not a spine, but you can always regularly, एक check रख सकते हैं हम अपने बच्चे पे. आप politely उनके पास जाके बैठे, just see what they're watching. Because Hmm. you know what, after a few days, if they're watching something constantly, it will be reflected in their behavior. तो मदर तो वैसे भी इतने इंट्यूटिव होते हैं, उनको सब इंस्टिंक्ट इतने हाई होते हैं. So we can be a good observer in that case. I would suggest all the mommies sitting here, and we must keep a check, a healthy check on our kids. Actually what they are watching also. Yeah, it comes in their vocabulary. It Definitely. comes in the way they treat their Yes. friends. You can easily make out कि कहाँ से Even the हो tone, रहा है. Yeah, even the even the tone, tone, in exactly. They the catch it. tonality also it will come. Yeah. They catch it. Yeah. Thank you so much. It's really helpful, guys. If you are liking, you can appreciate. You can use the chat box. And if you have any question, you can post in the chat box, and I would be happy. ये question मैं वो ले रही हूँ जो mothers ने already मेरे साथ share किए हैं, right? So next question is, why does my child struggle to focus or finish tasks? कि मेरा उसका Okay. फोकस नहीं है, राइट. थैंक यू स्वप्ना, थैंक यू विशाली, गॉड ब्लेस यू गाइस फॉर बीइंग इंटरैक्टिव. Yeah. या. Yeah, so for this particular topic, I would say a distracted mind is often an overwhelmed mind. जब हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, we have so much of to-do list. So definitely we are not able to focus in what we are expected out of us, right? So instead of pushing them harder कि भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये करना है, first आना है, सब कुछ करना है. So I think sometimes, we
we can just pull back ourselves. So what you can do is we can have tasks into mini wins. जरूरी नहीं है कि एक चीज अकम्प्लिश बच्चे ने कर दी हम तभी उनको चेरिश करेंगे या उनको अपलॉड करेंगे. We can always enjoy and celebrate the mini wins. And like in the video games we have all the levels, level 1, 2, 3, and it encourages us. Why not? Like if I have cleared level 2, suppose, so I will be encouraged to do level 3, and why not 5, why not 10? So this is how it happens. So they need your encouragement after every small checkpoint. Keep encouraging. This is how we can build back slowly and steadily the Basically, I focus think the back in focus is more on जो नहीं करते, and it. हाँ. फोकस इज नॉट ऑन जो करते हैं. चाहे वो छोटा सा आज एक राइटिंग का एक ही 2 लाइन भी लिखी, तो इफ यू Yes, अप्रिशिएट वो yes. तीसरी लाइन अपने आप लिखी जाती है. अपने आप अब वो करें. एक ए Exactly. लिखा, उसको अप्रिशिएट कर दो, रेदर देन अभी 9 पढ़े हैं. सो वाओ, यू हैव Hmm. रिटन सो ब्यूटीफुली. आई थिंक बिकॉज ये फोकस हम कहते हैं कि नहीं करते नहीं करते नहीं करते, लेकिन एक्चुअली एट टाइम्स दिस इज माय पर्सनल से ऑन इट एज वेल, कि कई बार वो उस टाइम का फोकस इज योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपके 10 Yes. टास्क हैं, तो वो उस टाइम पे नहीं कर रहे जिस टाइम पे आप एग्जैक्टली वो काम फिनिश करना चाहते हैं. एंड दैट लीड्स यू टू कि ये तो बात नहीं मानते, ये फोकस नहीं करते, इनका अटेंशन स्पैन कम है. That is one thing. Yeah. Okay. Now, thank you so much. Thank you so much. I think, thank you, Ritika, for posting that heart in the chat box. So, moving on to our next question. My child has anxiety about exams and friends. How do I help them feel confident? Okay. Yeah. बहुत Nice one. एग्जाम Uh, एंजाइटी आपने देखी होगी स्टूडेंट्स में, बिकॉज यू yes. फेस इट इनसाइड आउट एवरी डे, राइट? और उससे ज्यादा मैंने Yes. मदर्स में देखी है. एग्जाम आ जाते हैं, मदर्स में नीचे ज्यादा खेलना बंद होते आ जाते हैं. हैं, वो नीचे पार्क में नहीं आती हैं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, एज इफ कल जाके वो 2 घंटे के एग्जाम के लिए वो 24 घंटे मदर स्ट्रेस में रहती है, जैसे एग्जाम उन्होंने जाके लिखना होता है. तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी Yes. आंसर फॉर ऑल द मॉम्स. Nice. True. True, Deepinder. Well, here I will just say that see, confidence is not built by perfect results. ये नहीं है कि perfect A graders मिल गए हमको, we are on the top notch, we are the toppers, and then only if I talk about of course the kids here. So ऐसा नहीं है कि हमारे grades बहुत अच्छे आ गए या हमें first prize मिल गया तो ही हम confident feel करेंगे. But but by feeling capable during the imperfections also. Like, okay, I'm not able to do yet, but I may try that. So, positive affirmations and giving constant feedback to the kids, ये बहुत बहुत important रहती हैं. उनको help करें कि हर situation को visualize करने के लिए. जरूरी नहीं है कि हमारा first attempt में ही, we are going to reach the success. It will not happen. And why can't we share our own childhood worries? Even we can always talk to them. The superheroes also have the nervous moments. Yeah. So हमारे में भी कुछ ना कुछ nervous moments रही होंगी. And why can't we share our moments with our kids? And it will develop a very good sense of a connection, a bond between the parent and the child. So automatically the confidence will be gained for sure. बिकॉज आई थिंक मोर देन अ चाइल्ड, मदर को कॉन्फिडेंट नहीं होता, या मदर डिसाइड करती है कि एग्जाम में कैसा होगा. मुझे कॉन्फिडेंट है, इसने सारा Yes. सिलेबस कर लिया ना, अब तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आज ये पता नहीं एग्जाम में कुछ कर कर आएगा कि नहीं. सो आई Yes. थिंक द एनर्जी एंड द वाइब्रेशन विच यू गिव योर चाइल्ड has a Yes. huge Yes. role to play how they are going to Absolutely. take the exam anxiety, right? Absolutely. So yeah, Yes. so that's really really important guys. So अपनी childhood worries share करो. Even आज भी अगर आप कभी हाँ घबरा रहे हो, जी. कुछ पहली बार करने जा रहे हो, तो tell your child, I am feeling nervous because I am doing this first time. Then child will be okay. जब Yes. मुझे लगता है तो मैं भी बता सकता हूँ कि मुझे भी ऐसी nervousness होती है, right? So Correct. next question is related to teen. My teen won't talk to me like before. Have I lost them? I'm Big sorry. question. बिग क्वेश्चन. बिकॉज कई बार Yes. हमारा जो वो फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं ना, उसमें हमारा इमोशनल बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं हो पाती है, बिकॉज वी आर Correct. सो फोकस, खाना पिलाना नहलाना धुलाना, जो एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें लगते हैं वाह हमने तो सब कुछ किया, Correct. लेकिन जब वो टीन एज में पहुंचते हैं तो वी कंप्लीटली फील अ डिस्कनेक्ट, एंड दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दैट Yes. स्पेस ऑफ अ मॉम. Yes. Absolutely. Absolutely. Actually, this is just I love, but this is a very serious question for the parents also, for the kids also. But here we need to actually understand.
पहले तो कि you have not lost them, वो तो बेचारे खुद ही lost है. They Exactly. are actually struggling to Hmm. find out what they are, and they Hmm. are struggling and learning how to be found again. Hmm. 3 years एक्चुअली आप ये समझ लो, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हमारा जो फोन है ना वो एरोप्लेन मोड पे है, एयरप्लेन मोड पे है. ठीक है, फोन ऑन है, इट्स स्टिल ऑन, बट Hmm. टेम्पररीली ऑफलाइन है. तो वो जो Hmm. कनेक्शन है ना वो हमको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा. तो कीप द कनेक्शन अलाइव. पर हम कैसे रख सकते हैं? विद रिस्पेक्ट, विद क्यूरियोसिटी, बट नॉट फॉर इंटरोगेशंस. हमें वो स्पाइन वाला हेलीकॉप्टर मॉम पेरेंट नहीं बनना है. But respectful boundaries we can keep, a healthy matlab boundaries we can keep on talking to them on a regular basis. Don't feel like, disconnection. Yes, of course you can feel that, but you have not lost them. Trust me, you have not lost No, them. like you It's just work with lot of like आप काम करते हो थोड़े सीनियर इस एज में जब ये ट्रांजिशनिंग बच्चों में हो रही होती है. सो डू यू एवर right. फील आई मीन लाइक kids are not that open to parents at time the way they are open with their teachers, some of their teachers. Yes, yes, मतलब दे फील टू absolutely. शेयर लॉट ऑफ More थिंग्स विद देयर often. टीचर्स लेकिन वो अपने पेरेंट्स को बताना नहीं, बिकॉज मुझे This यहाँ पे ये to चीज लगती है happen क्योंकि a ईक्यू कोई lot. सब्जेक्ट नहीं है. और Exactly. पेरेंट्स को भी ये किसी ने नहीं सिखाया होता इमोशनल रेगुलेशन. तो वो जो फाउंडेशनल ईयर में इमोशनल रेगुलेशन सिखाना था उसमें तो हम खुद ही उलझे होते हैं इतने ज्यादा अपने एंगर एंजाइटी स्ट्रेस बर्स्ट आउट हो रहे हैं कोल्ड ड्रिंक बने हुए हैं संभल नहीं रहा टाइम नहीं मैनेज हो रहा बिजीनेस Hmm. दिखाई है हमने इतनी ज्यादा. तो जब वो बच्चा उस लाइफ की स्टेज पे पहुंच रहा है तो उसको वो एक्चुअली वो स्किल्स ही गायब है उसके में. हाउ टू मैनेज Because दैट साइड ऑफ I हिज would और हर say, लाइफ. yeah, yeah, absolutely true, Japandar. Because we also realize, because more often, like we just come across such cases very often. So जब हमें ये हम पूछते हैं या हम बात करते हैं उनसे, तो some or the way the parents are not having a clear picture about it. And when we ask them, when we talk to them, and the core thing comes this only, कि कभी बात ही नहीं हुई, Means कभी बात की ही नहीं. पता Because ही नहीं लगा कि वो बच्चा kids उस also, बिहेवियर तक कैसे हाँ, पहुंच गया. एग्जैक्टली. पेरेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू वी थिंक ओके बच्चा है, अपने आप पता ही है, बड़े हो गए हैं भाई, पता है, दे नो द 12. और वेर एवर किड्स आर कंसर्न, तो उनको वोकैबुलरी ही नहीं पता है. दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज देयर इमोशंस. ओके भाई, ये भी होता है. So yes, there is a lot of things to be done on this thing. Lot of efforts need to be put up from the kids' point of view, also from the parent point of view, also. आई रेड द And 9 ईयर together only वाला they जो should. हम लोगों ने उस बच्ची के साथ वेयर शी वाज एकदम से साइलेंट हो गई थी एंड देयर वाज जस्ट अ Silence, वेरी yes, स्मॉल yes. मोमेंट. वी हैव नॉट वॉच यू कैन वॉच दैट स्टोरी गाइस. इट वाज अ 9 years old girl and you can check it out on Instagram. Aman has posted it, and that was a case which came, and it's really sometimes Yes. very heartbreaking कि पेरेंट्स को पता नहीं लगता कि क्या करना है एंड दे थिंक कि हमें तो कुछ नहीं पता. दे आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट. ओके सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग इट सो ब्यूटिफुली. सो नाउ दिस इज समथिंग जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग इज लाइक मेरी पेरेंटिंग पे टैग है राइट. ओके सो आई एम Okay. मेरी पेरेंटिंग अच्छी है या नहीं. So next question from a mom is, how do I help my child control emotional outburst in public? पब्लिक के सामने मत करो, यहाँ मत करो, घर चल के Okay. कर लेना, right? So the only thing is, I mean, the mother wants to know how can I control that public outburst? Okay. So सबसे पहले तो आई वुड से कि अगर आपका बच्चा पब्लिकली मेल्ट डाउन हो रहा है, आउटबर्स्ट हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये एक नोशन अपने पास बोल्ड अक्षरों में अपने आप को समझाइए कि वो आपका पेरेंटिंग का टेस्ट नहीं है, आपका स्कोर कार्ड बिल्कुल नहीं है. इट इज True that. नॉट एट ऑल. इट इज नॉट एज अ मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट. नो. Ulta, the kids are so emotionally overloaded. They don't even know how to handle the emotion. Kids, आप just imagine करो, kids एक toy shop में जा रहा है, इतने सारे toys दिख रहे हैं, उसको खुद पता ही नहीं है उसको toy लेना कौन सा है. ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. Just I'm giving a simple example. Like this could be happening. So उस time पे ना kids, we can say it's just like a fizzy soda game. जितना हम उसको शेक करेंगे ना, थोड़ी सी स्टिमुली से वो पूरा एकदम पॉप अप हो जाएगा. फटेगा. Yes, it will happen. So, and many of the parents are facing this more often. Like we go, and we can see this very easily. This
सिनेरियो हैपनिंग, बच्चे फ्लोर पे हैं, टैंट्रम्स हो रहे हैं, सब हो रहा है। बट इसका जो एक आई कुड गिव अ सोल्यूशन जो इट इज, prepare them in advance, teach them calming rituals, and always connect before you correct. हाँ, ये करो, ये नहीं. Just talk to them. Like for instance, I would say, for like what I used to practice, if I would say, like whenever we are going to the market, I talk to my daughter. I tell her in advance. Okay, bacha, we are going here. We want these many things. Do you need something? Like, if there is any requirement of yours, we talk about it. और हम कभी ये मत सोचिए कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको नहीं समझ रहा. आई टेल यू किड्स आर वे स्मार्टर, दे नो एवरीथिंग, एंड दे विल गेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. तो I don't know, मुझे शायद I'm not showing off, but I don't think I have ever encountered this situation because we go very planned way. I would say कि हमें पता होता है कि we are going on this shop, we want these many things. More you make them predictable for your child, it Yes, becomes yes. easy. It is और easy. Give और I them don't, a yeah, broader उनको roadmap. पता है. And when you have those हाँ. healthy things around you कि month में एक toy लेना है या 2 toy लेने हैं, Yes, so I think that becomes very easy. Sorry for that. So that becomes very easy for you to tackle that moment. But उस correct. टाइम पे आपका बच्चा फ्लाइट मोड में है, फाइट या फ्लाइट मोड में, तो ज्यादा गुरु तब ज्ञान नहीं समझेगा ही देने नहीं. की जरूरत, वो नहीं तब समझेंगे, उस वो नहीं मोमेंट सुन पे रहे. कोई मत. Yes, Their brain yes. is Well completely said. shut down. Right? Exactly. So अगर वो कर भी रहे हैं, उनका बचपन है. Right? So don't feel bad and don't Exactly. change your yes, no to yes. That's the हाँ. biggest thing Yes. parents do. This उनका is again. tantrum दूर करने के लिए immediately उनकी जो no होती है वो yes हो जाती है कि चुप हो जा, लोग देख रहे हैं. So if you're doing that, that's Yes. doing more harm than good to your child. So having Yes. said that, let's move on to our next question. Yes. So another mom is asking me, what do I do when my child compares themselves to others and feels not good enough? और ये usually अब जब I think when the child crosses 7, 8 वाला Yeah. जो आता है ना, जब वो अपने comparison mode, when they start to give meanings to all their things, right? कि ये अच्छा है, ये Yes. नहीं अच्छा. So just a mother wants to understand कि वो comparison जो आ रहा है not good enough वाला, how can we tackle that? Absolutely. Yeah. It's a nice question actually. Comparison actually is the thief of joy. ये आप समझिए. जहां पे कंपैरिजन शुरू हो गया, मतलब आपकी खुशियां वैसे ही थोड़ी कम हुई, आधी होगी. आप ये समझ लो. ठीक है. और ऑल्सो इट्स अ मिरर ऑफ अनमेट वैलिडेशन. जो हमारी वैलिडेशन नहीं पूरी हुई, इट्स जस्ट अ मिरर ऑफ. तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? तो कंपैरिजन जब आता है, इसको कैसे डील करना है? आई वुड से दैट आई वी आल्सो प्रैक्टिस दैट थिंग, लाइक क्रिएट अ सक्सेस जार फॉर योरसेल्फ एंड योर फॉर फैमिली. एक हर घर में ना एक सक्सेस एक जार बनानी चाहिए. सेलिब्रेट योर जस्ट all the achievement, छोटी हो बड़ी हो, आप every efforts, every achievement, every kindness, all the positivities that you have in you and your kid is having, and just keep building that. Your child actually needs to be seen more than the scores. सिर्फ ये नहीं है कि जो ऑफिशियली रिपोर्ट मार्क्स कार्ड पे कितने स्कोर आए, आ रहे हैं, आईक्यू वैलिडेशन कितना नहीं. अच्छा है, एग्जैक्ट. IQ, हाँ. आईक्यू उससे कितना उससे अच्छा है. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है EQ कितना अच्छा है हमारा. So what are the other feelings that you had? What are the good qualities your child is having? We can always discuss these kind of things at our home, and more often we बिकॉज can हम discuss कहीं it. जाते हैं तो सबसे पहले कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, अरे ठीक हाँ. ठाक ही है, वहीं बंद हो जाते हैं. क्यों, ये क्यों नहीं बोलते, यू नो ही इज वेरी क्रिएटिव, और मे बी शी इज वेरी क्रिएटिव, Yes. शी इज वेरी काइंड. Hmm. स्टडीज में शी इज एवरेज, बट यू नो व्हाट आई लव अबाउट हिम और हर, कैन यू ऐड समथिंग पॉजिटिव देयर कि मेरे बच्चे का सिर्फ स्कोर इज नॉट द थिंग, Score is बिकॉज not the दिस इज, validation. ये हमने ही सोसाइटी में बनाया है और इसको ठीक करेंगे भी हम सब मिलके ही सोसाइटी में. सो जस्ट Exactly. टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर चाइल्ड. डोंट टॉक जस्ट ऑन द टर्म्स ऑफ IQ, just also tell what other good qualities you know which you see in your child. Start more appreciating because everybody wants to be heard, seen and felt. तो वो उसी के लिए शायद कंपैरिजन में जाते हैं और सोचते हैं कि हम वी आर नॉट गुड इनफ. सो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग सो ब्यूटिफुली. सक्सेस जार गाइस प्लीज घर में रख लीजिए एक. और Yes. सिर्फ अपनी अचीवमेंट नहीं, जैसा मैंने बोला, उसमें अपने एफर्ट्स, उसमें अपने किसी को काइंडनेस दिखाई, पुट एवरीथिंग इन दैट एंड सेलिब्रेट, so that your child knows
life is beyond just achievements. Okay. So yeah, Can moving on to I ask the question on this part only? you have to post it in this message, Priyanka, right? अच्छा, I'm just left with नहीं, 2 questions and then I'm going okay, to take the live questions from this audience, right? okay. ये वो वाले questions I'm taking first जिन्होंने Google form में मुझे questions भेजे थे, right? So definitely we'll come back. आप यहाँ पे post कर दीजिए. I'll come back on this point. Right. So next question is, this is the second last question I'm having. That is, how do I build emotional strength without spoiling or being too soft? Okay. कई लोग कहते हैं ना कि मैं Uh, मतलब इतना ही अच्छा हो जाता है कि लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, और वही चीज शायद वो अपने बच्चों के साथ भी फील करते हैं दैट नाउ, पहले तो वो लोगों को बोलते हैं जब बच्चे बड़े, तो हम लगता है हमारे बच्चे भी हमारा फायदा उठा रहे हैं, राइट? सो हाउ डू आई बिल्ड इमोशनल स्ट्रेंथ विदाउट स्पॉइलिंग और बीइंग टू सॉफ्ट? so see, strength isn't about building up and making things hard. Strength word सुनते ही हमारे में आ जाता है ना, बहुत मजबूत, बहुत something rigid. No, don't think that way. But walking through the hard things actually, you can build that strength. It's a process. You can't just take up. It's not measurable. You can't measure the strength. Okay, my kid is very emotionally strength. हो सकता है वो किसी सिनेरियो में बहुत strongly बच्चा behave कर रहा है, but at the second time he's not that capable of it enough of it. So it's a beautiful journey. It's a beautiful process, and I would suggest here, be their coach, not as their protectors. हम हर जगह बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ऑफन ऐसा होता है, बच्चा हर मतलब पेरेंट्स जो है ना एक प्रोटेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, एक शेल के अंदर बच्चे को रख दो। तो प्लीज डियर पेरेंट्स, आप ये समझिए कि हम लाइफ लॉन्ग बच्चे के साथ नहीं रह सकते। तो वी कैन जस्ट कीप देम हेल्पिंग बिल्डिंग देयर इमोशनल स्ट्रेंथ्स, नॉट एज इन कि हम सब कुछ सेफ गार्ड कर दें उनको, कोई परेशान कर रहा है तो हम चले गए, आई एम नॉट सेइंग कि जाना ही नहीं है, टैकल ही नहीं करना। बट let them आई थिंक वो face their सर्टेन own एक्सटेंट वो अपनी battles. बैटल्स खुद हैंडल Yes, करते हैं जब yes, जाते हैं। let them handle. इवन कई Yes. बार बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मैम मम्मी आप मैम को बोल देना, राइट? आप Hmm. मैम से बात कर लेना, Exactly. ये Yes, इसने किया। बट एट दैट्स द मोमेंट एक्चुअली यू हैव टू बिल्ड दैट ट्रू स्ट्रेंथ इन अ वे कि ये yes, इसके लिए टफ पार्ट है, राइट? सो इट इज नॉट दैट मैं जाके बात कर लूं। हाउ कैन आई yes. मेक माई Let them. चाइल्ड बी एट ईज एंड टॉक अबाउट दैट टॉपिक, राइट? Absolutely, So absolutely. again, Here I would rightly add said. on. Yeah. Yeah, here I would add just act like a trampoline. I'm sure everyone has seen a trampoline, right? Yeah. How strong it is. कि इतना भी, और उससे क्या होता है? It's a base, and we are confident enough that every time I come back, I will jump again. So it's like a bouncy. It will bounce back. Basically, Moments will come. It let will them come. try, let them fail, let them Yes, cry, rise, try भी करेंगे, cry भी yes, करेंगे, fail भी होंगे, rise भी होंगे, because we want to give that अभी नहीं दिया तो life tough moment में life देगी पक्का, exactly. because वो everybody तो who has है ही। taken birth, they will learn these things. अगर हम बचपन में बहुत Correct. easy कर देंगे ये चीज, तो जब life actually देगी hard way में, That's the and we beauty. are not here forever, right? We are for some limited time span, सब अपना अपना time span लेकर आएंगे. So that's a soul God has given. Give it a best mentoring and coaching in a way. Be the best mentor for your that soul which has taken birth through you. Don't be there, ऐसा कि मैं ही प्रोटेक्ट कर करके चल लेती हूँ, मैं ही यही कर करके चल रही हूँ। कभी कभी रोएंगे भी, ट्राई भी करेंगे, फेल भी करेंगे, राइज भी करेंगे, राइट? सो उनके होमवर्क्स खुद करने नहीं बैठ जाने, क्लास में ड्राइंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, मुझे खुद करने नहीं बैठ जानी। लेट देम टेक दैट मेसी ड्राइंग, बट विद Absolutely. कॉन्फिडेंस, आई डिड इट, मैंने बनाई है, right? So that really helps. And this brings to me the last question before I move on to the question from the audience, right? Yeah. So it is very beautiful question for me because, yeah, how do I handle tantrums or resistance to routines? Okay. Okay. So here I would add on. Children don't resist routines. They resist Awesome. control. Yes. They resist control. क्या मीनिंग हुआ इसका? हम उनके लिए कुछ प्लान करते हैं, कुछ रूटीन बनाते हैं, उनको उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उनको लगता है ना कि मेरा तो कुछ है ही नहीं,
मतलब मेरा कोई ओपिनियन मैटर ही नहीं कर रहा है, मेरा कोई रोल ही नहीं है, that is what is going to trouble your kids a lot. So what we can do, रूटीन तो बनाना है, अच्छे इंसान भी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो मेक योर रूटीन्स कोलैबोरेटिव, उनके साथ डिस्कस करके बनाइए, उनको छोटे छोटे रोल्स दीजिए जिनसे कुछ ज्यादा बहुत एड ऑन कोई गलत हो भी जाएगा तो इट्स नॉट एट सम वेरी बिग ह्यूज कोई हार्म हो जाएगा. So like let them make a small choices. Okay, what do you want to wear today? What kind of a clothes you want? Like you can give her two options, एज two, three अप्रोप्रिएट, options. या You can have एज age अप्रोप्रिएट हमें appropriate. थोड़ा सा उनको Yes, yes, yes. फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोलिंग कम करनी Yes, पड़ती है. वी हैव टू ईज देम exactly. आउट अ बिट ऑन दैट. Correct. Ultimately, like we have to give them the sense of cooperation. We are a team, we are building. Because हमारा वो fight mode तो है ही नहीं. We are working and we are raising our kids. So more of authoritatively, we cannot win that. Or we can't handle any situation. So make it collaborative. Give them certain areas where they can get the feel of leading them. चाहे आप ही lead कर रहे हो, but उनको ये feel दे दो कि हाँ भाई तुम ही leader हो, तुम्हारे according सब यू कुछ आर होगा. मेकिंग द चॉइसेस, यू आर मेकिंग You द are making this चॉइसेस. choice. That is a win-win एग्जैक्टली. situation. क्योंकि रेजिस्टेंस Happy वहीं पर home. आ रही है, रेजिस्टेंस वहीं पर आ रही है, टैंट्रम वहीं पर आ रहा है, और मेजोरिटी ऑफ द Exactly. चेंजेस थिंग्स में इट इज नॉट दैट बिहेवियर, इट्स अ पावर स्ट्रगल. इट्स अ पावर का स्ट्रगल है कि किसकी पावर चल रही है ज्यादा. वो जैसे Yes. जैसे वो बड़े होते हैं, दे वांट टू हैव दैट पावर इन देम कि what are the areas where I have my own power to decide. Not every time I want something to be decided for me and just follow the instructions. Correct. एंड Correct. वी एक्सपेक्ट कि जैसे हमारे बच्चे हैं तो उम्र भर हमारे बच्चे ही की तरह हम हर बार, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ they teach us a lot of things. So we have a question. Thank you so much for answering. So all the questions so far I have are got answered. तो जिन्होंने भी वो शेयर किए थे, they will watch the recordings, right? And we have a question from Priyanka now. Kuhu came today saying मेरे को स्टार नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, comparing herself in school, how to process that. So Kuhu is 3 years, right? Okay. And वही बात शी होती है इज कि कंपेयरिंग टू अ किड एट स्कूल कि उस मायरा को हम्म स्टार दिया मैम ने, मेरे को नहीं दिया. तो मेरे हम्म, हस्बैंड का आज कॉल आया था ये बोलने के लिए कि आज वो बैठ के गुस्से में बैठी हुई थी कि मेरे को स्टार नहीं दिया. ठीक है. तो आपने क्या किया उस मोमेंट? मैं तो ऑफिस में थी ना, तो मतलब मेरे हस्बैंड तो ऐसे कह रहे थे कि तुम पढ़ती ही नहीं, मतलब उन्होंने ऐसे दिमाग में सोचा, उन्होंने बोला नहीं होगा कि तुम कुछ लिखते ही नहीं हो इसलिए मैडम ने तुमको दिया ही नहीं स्टार. मतलब एक्चुअली इस पॉइंट दो चीजें थी, दो आई हैव टू क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन वाज कि कुहू को ना शी डज नॉट लाइक टू राइट. आप उसको बोलोगे ना आज पेंटिंग करेंगे तो वो खुशी से आ जाएगी. एंड शी लाइक्स मैच द कॉलम्स. मैच आप पूरा दिन करवा लो उसको, वो मैच करेगी. बट लिखती नहीं है वो. मतलब शी नोज हाउ टू राइट बट शी डज नॉट वांट टू राइट. वैसे बोलेगी इतना सारा होमवर्क क्यों दे दिया मुझे, जबकि मतलब 3 S लिखने थे बस. ऐसा. यस. तो वो 3 S की बात नहीं है. सो अमन, वुड यू लाइक टू टेक द फर्स्ट जहाँ पे कंपैरिजन हुआ, एंड द सेकंड Yes. राइटिंग वाला आई विल हेल्प यू विद. Maybe if you want to answer, maybe I can add it. So, No, no. but you can take that up Sure, first. sure, sure. Yeah. Yeah. Hi, Priyanka. Thanks for the question. I mean, See, from my opinion, what we can do is we can always tell our kids that you are special. Always give them the sense of making them feel special, and make them aware that actually the stars are not deciding how awesome we are, how good we are, what capabilities we are having. So, and you can ask them, okay, अच्छा आज star नहीं मिला, but can you tell me what special happened today? तो इस तरीके से what we can happen is we can understand them कि okay what new things they have learned और आज क्या special हुआ. They will get that sense. स्टार तो ऑब्वियसली हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसको ये एहसास जरूर हो जाएगा कि यस ऐसा भी नहीं है कि आई डोंट डिजर्व दैट. एंड यू कैन ऑल्सो टेल दैट एवरी डे मैम कांट गिव स्टार्स टू एवरीबडी, right? So you can get that, and that basically the stars are not deciding factor for you how good you are at. And I always also suggest here, don't say that okay आपने कुछ अच्छा ही नहीं किया होगा इसलिए स्टार नहीं मिला. Kindly refrain yourself. I know ये obviously ऐसे निकल जाता है कई बार हमारे मुंह से, लेकिन please try to refrain yourself
saying these kind of a words because somewhat वो बच्चों को जाके बहुत हर्ट करते हैं। हमें नहीं समझ में आता उस टाइम बच्चा आपको किस तरीके से they are taking you on that part. Even basically But what I would say, yeah, you can ask the question, अच्छा क्या हुआ था आज, मैम क्यों दे रही थी स्टार? ओके, तो राइटिंग नहीं अच्छी लगती ना हमें, तो जब हमें राइटिंग, अगर सी इट इज ऑलवेज कि अगर जिसको मिला भी है तो उसने कुछ ऐसा किया जिसके लिए मैम ने उसे दिया। ओके, जिस दिन आपको मिला था आपने ऐसा क्या अच्छा किया था, इट मीन्स कोई कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। बिकॉज अभी क्या होता है, एंड सेम थिंग आई एम फेसिंग विद सरताज ऑल्सो, कि आज मुझे लाइन लीडर नहीं बनाया, किसी और को बना दिया, अगले दिन मैम ने किसी को बना, नाउ ही वांट्स टू बी लाइन लीडर एवरी डे, बट नो, he can't be. Every child gets a turn. तो it took him 2 days to understand and take that thing कि मैं तो अब से अब हमेशा लीडर बनता था, अब कैसे मेरे को पीछे होना मतलब हो गया, राइट। एंड कमिंग ऑन टू द राइटिंग, अब जैसे जैसे बड़े में तुम्हारे लिए वो सिर्फ 3 S है, उसके लिए वो 3 S है, राइट। actually. मेरे हिसाब से बस 3 S है, इसके लिए रो रहा है। जब मुझे नहीं आता था ना, वो 3 भी मुझे इतने बड़े लगते थे, right? Okay, so what you can do is now, I will highly recommend Priyanka, go back, इस चीज का आंसर ना, द स्क्रीन टाइम बैटल का जो थिंग इज देयर, अगर आपकी पूरी वो मास्टर क्लास वाला है तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है ये चीज, क्योंकि राइटिंग इज अ स्लो प्रोसेस, राइट। नाउ हमारा बच्चे का ब्रेन इतना फास्ट हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द किड्स आर नॉट लाइकिंग टू राइट नाउअडेज, क्योंकि इट हैज फेलियर्स। जो रियल लाइफ है ना, उससे जो रियल लाइफ है, चाहे हम छोटे कार्टून दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, हम उनके साथ एक्टिविटी करें, तो हम शुरू में इतनी ज्यादा एक्टिविटी ड्रिवन कर देते हैं ना, कि अब ये जो स्लो प्रोसेस वाली चीजें हैं ना, ये करनी बहुत Yes, मुश्किल हो रही है बच्चों के लिए। एंड दिस इज अ बिगेस्ट थिंग, जहां पे correct. मदर्स इतनी ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देती हैं। अब क्या हो गया, ब्रेन इतना ट्यून हो चुका है, ऐसे तो न्यूनेस चाहिए, राइट, ऐसे न्यू एक्टिविटी चाहिए, लेकिन राइटिंग तो भाई ऐसी नहीं है। राइटिंग में तो बैठना Yes, पड़ेगा, पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़नी पड़ेगी, और उसको लिखना भी पड़ेगा उन 2 लाइंस के बीच में। सो देयर इज अ ह्यूज गैप। सो इसमें क्या होता है ना, बच्चा का माइंड बहुत फास्ट चल रहा है, तो धीरे धीरे हमें उसके एक एक बैलेंस लाना पड़ता है, स्लोनेस को भी एक्सेप्ट करने का। और उसमें मुझे लगता है बच्चे से ज्यादा मदर का पेशेंट लूज होता है। 3 ऐसे फटाफट लिख के खत्म कर, 3 ऐसे भाई कि actually. आधा घंटा 3 S, तेरे 3 S के लिए बैठूंगी मैं, वी लूज, वी डोंट हैव दैट पेशेंट की। कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं लिखा जा रहा, कोई बात नहीं, हम यहीं बैठे, हम ट्राई करते हैं, चलो इस लाइन से यहां तक आते हैं, इस लाइन से यहां तक आते हैं, और जब एक लिखा, वाओ वी हैव डन वन, अरे अब तो 2 ही और है, हैंड्स थक गए हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ, लेट्स डू 5 टाइम। एंड दिस आई डू विद सरताज, ओके। क्लास में भी करता है वो, पेंसिल छोड़ के जब मन भर जाता है तो मैम को बोलता है मेरी मम्मी ने बोला ऐसे करना है, क्योंकि मैं थक गया हूँ। एंड मैम लिटरली टोल्ड मी कि ये आज आपने सिखाया, मैंने कहा हाँ, क्योंकि एवरीडे नोट आ रहा था, नॉट विलिंग टू राइट, नॉट विलिंग टू राइट। और मैम कहती इतना स्मार्ट है, इतना आता है, लिखने के टाइम पे तो पेंसिल छोड़ के बैठ जाता है। सो आई टुक इट एज कि ही इज स्ट्रगलिंग, राइट, लेट मी मेक इट इजी फॉर हिम, लेट मी टॉक की क्या दिक्कत आती है, नहीं मम्मी हाथ बहुत दर्द होता है, तो आई के ओके हम छोटी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, शायद 2 S और लिख पाए, तो ही विल डू 5 टाइम्स, हाँ लग तो रहे हैं आप स्ट्रांग हो गए हैं, 2 तो और हो जाएंगे। So I'm thinking if you're doing these small things, you are becoming stronger. Yes. क्योंकि that is a tough part. Now in that tough part, I need not to say कितना easy है. I have to say yes. I have to first connect. हाँ tough हो रहा है, Acknowledge that, yes. tough हो रहा है, but मुझे लगता है कि हम अगर ऐसा करें तो कर पाएंगे, ट्राई कर लेते, so that will really help. Okay. कंपैरिजन के लिए हो गया, आपकी राइटिंग के लिए हो गया, ठीक है। सो ट्राई दिस एज अ फेज, आपको ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा देन योर चाइल्ड, स्पेशली टिल द एज ऑफ 6, बिकॉज वो रेगुलेटरी स्टेज है। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, होप यू गॉट द आंसर। प्रियंका, एनीथिंग एल्स यू वांट है? यस मैम, इस इन दोनों में तो डन है। एक और क्वेश्चन था बट आई कैन टेक इट आफ्टर योर दूसरा क्वेश्चन। Okay, so let me take Ritika's question. Hello, ma'am. My daughter is 7 years. She gets angry very easily for small things. Right? तो 7 years है, Yes. राइट। 6 years के बाद भगवान क्या कहते हैं, ये ज्यादा यूज करो, ये
कम यूज करो. Yes. No, it's not. I mean, it seems on this front, lighter front, I'm taking it in this way, but it is actually the development stage in which your child is. और उसके Yes. एंगर से पहले we also have to see, जैसे कि अमन ने बोला ना कि एंगर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में यही निकल कर आया कि एंगर क्यों हो रहा है. सो अमन, इफ यू वांट टू टेक, बिकॉज लॉट ऑफ मदर कम्स कि हमारे बच्चों के गुस्से का हम Yes. क्या करें. Exactly. Yes. Thanks for your question, Rudika. First of all, this is actually a very, very important and a very broad topic, I would say. It's a big chapter, anger issues and how to model that behavior, how to help out our kids with facing and suffering from actually that behavior, because it's just like that. A snap and you're angry. Like so, we do a lot of things actually. We can there is a detailed chapter and modules for that, how we handle our anger issues and all. So what we can do is सबसे पहले वही है कि acknowledge करें कि अगर आपका बच्चा angry हो रहा है, छोटी छोटी बात पे हो रहा है, just talk to them. Okay, bacha, like what is making you so frustrated? What is irritating you so much? And what I help my other parents also, my kid also, even we are having, that is we have created a calm corner at our home also. So this we help out the kids, to how to deal with our anger issues. Like, So they can have very a beautiful. beautiful, yes, Yeah, I just wanted to tell, like, I just yes, wanted yes, to ask please. कि, like, मेरी बेटी शी 7, ठीक है, तो अगर उसको कुछ भी बोल दिया जाए, हल्का सा डांट भी दिया जाए, like, Mm-hmm. कभी उसको बोलो कि होमवर्क कर ले, अदरवाइज शी इज डूइंग एवरीथिंग, फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी हैं, स्टडीज वाइज भी शी इज वेरी गुड, बट कुछ टाइम शी डजंट वांट टू स्टडी, शी इज लाइक कि मम्मा मुझे नहीं पढ़ना, तो Mm-hmm. ये पढ़ लेती है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती, शी स्टडीज, Mm-hmm. कर भी लेती है, शी गेट्स गुड मार्क्स आल्सो, इवन देयर दो अ Okay. टीचर इज वेरी लाइक कि नहीं, ये बच्चा बहुत अच्छा है एंड पेशेंट भी है, मेरे को इसको काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ता, क्लास में फटाफट फिनिश करती, कॉपी चेक करा लेती है, एवरीथिंग इज गुड इन हर, Okay. बट Okay. समटाइम्स लाइक क्लास में इश्यूज नहीं है, घर पे इसको बोला जाए ना कि थोड़ा सा काम कर लो फिर फ्री हो जाए, चीज लाइक मेरे को नहीं Mm-hmm. पढ़ना मम्मा, मैं तो ठीक है नहीं पढ़ना, थोड़ी देर में पढ़ लेना, देन ऑल्सो शी Mm-hmm. डजंट स्टडी, तब आज थोड़ा गुस्सा आता है कि बेटा पढ़ ले, मैम गुस्सा करेंगे, आप मुझे डांटते रहते हो, आप मुझे मारते रहते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, लाइक अर्लियर शी वो ट्राइज टू थ्रू ईच एंड Okay. एवरीथिंग Yeah, I yeah. got your So I Ritika, got your point. we got you In that. बट नाउ We yes, yes. got your question. Uh, Yes, you want to say, Anand, yes. because yeah. Yeah, yeah. So यहाँ पे ना I would suggest कि don't be so pushy. Give space. Release कर दो. I tell you one thing. आप एक दिन मत कराओ. उसका विश है ना, उसको काम नहीं करना है एक दिन. एक आई नो इट विल बी टफ फॉर बीइंग अ मदर, ये करना मुश्किल रहेगा, बट एक दिन ऐसा करो, अगर वो बहुत ज्यादा कर रही है ना कि नहीं करना नहीं करना, आप मेरे पीछे पड़े रहते हो, जस्ट लीव इट. अच्छा क्या होगा मैक्सिमम, वो स्कूल जाएगी, उसका काम इनकम्प्लीट होगा, टीचर विल आस्क, राइट, टीचर विल आस्क कि काम क्यों नहीं हुआ या क्या रीजन है. वन थिंग यू कैन डू दैट, लेट हर रियलाइज व्हाट ही कैन. सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज, व्हेन शी इज सेइंग कि मुझे नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है, just open it, ask her, okay, क्यों नहीं करना है? Ask the reason. Something is blocking her ना. अगर उसको काम नहीं करना, उसके मन में कुछ तो चल रहा है. मे बी उसको ये लग रहा होगा कि अब मैं नहीं भी करूंगी तो शायद इट विल बी मैनेजेबल, कुछ नहीं होगा, शायद मैम कुछ नहीं बोलेंगे या कुछ इफेक्ट नहीं होगा, या मैं बाद में कर लूंगी. तो रादर देन हम उनको जबरदस्ती करो 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 करो, खुशी नहीं रहना है, उनको स्पेस दो, उनको खुद को ये रियलाइज होने दीजिए कि अगर मैं काम नहीं करती हूँ या मेरा जो अभी डिजायर्ड सिचुएशन क्या है, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू डू माय होमवर्क, दैट्स इट, दैट्स हर जॉब टू डू, राइट, एज एन एज ए कंसर्न फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू. इट विल आई थिंक गिव यू हर अ बेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक आपको फिर उसके बाद कम एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. Yeah. Thank you so much. I just wanted to add, क्योंकि यहाँ पे वर्ड चॉइस बहुत मैटर करती है. काम इसलिए नहीं करना कि मैम गुस्सा करेंगे. पढ़ना इसलिए नहीं है कि स्कूल से डांट पड़ेगी. पढ़ाई को नेगेटिव नोशन Yeah. नहीं देना है.
पढ़ाई को एक इंटीग्रल पार्ट बनाना है, एक जॉयफुल जर्नी बनानी है अपने बच्चे के लिए। Yes. और अगर हम हमेशा ही ये चाहें, I think you have also asked this question couple of times in previous inner circle calls also, Ritika, right? And same thing is, अगर मैं अपने बच्चे को एक दिन होमवर्क बिना करे जाने दूं, because if I want to make her a responsible child for the lifetime, then I have to take little bit small things which is not harming that much. अगर मेरा बच्चा कह रहा है कि अभी करने का मन नहीं है, कहा why can't I accept it कि मन नहीं है? हमारा भी तो नहीं होता कई बार बहुत सारे काम करने का। ओके, अभी आपका मन नहीं है बेटे, तो कोई बात नहीं, आप सोने से पहले कर लें। ओके, सोने से पहले भी नहीं किया तो आपको किस चीज का प्रेशर? आप बोल दो ओके आज आपने होमवर्क नहीं किया, जस्ट लेटिंग यू नो, तो कल जो भी आपके मन में होगा आप मैम को बोल देना बेटे। डोंट रन 100 टाइम्स, क्योंकि उससे क्या कर रहे हो आप? अपने माइंड में एक न्यूरल पाथवे बना रहे हो, जब तक मैं पीछे नहीं पड़ती, जब तक मैं नहीं बोलती मेरे बच्चे का होमवर्क नहीं होता। कौन बोल रहा है? Who's creating this environment? I am creating. I am creating so much of pressure at home, right? And maybe और उस छोटी छोटी चीज पे मैं गुस्सा हो रही हूँ, and which is because my child is just reflecting my emotions on me. वो मेरे ही इमोशंस मुझे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने बिहेवियर में। तो जिस इमोशन के लिए मैं अपने बच्चे में देख रही हूँ वो कहीं ना कहीं यहाँ चल रहा है ऑलरेडी। एंड दैट्स व्हाई दिस एज इज वेरी वेरी सेंसिटिव। ये जो 6 से लेके 15 वाला आ जाता है ना, बहुत लोगों ने बोला कि आपने अपना होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम डाला तो उससे छोटे बच्चों के लिए क्यों नहीं डाला? बिकॉज उसके छोटे बच्चों में ना, आई वॉन्ट इवन द मदर्स टू बिकम दैट इमोशनली, वो अपने इमोशंस पे इतने अच्छे से काम करें, बिकॉज यू आर द फर्स्ट कोच टीचर मेंटोर, ठीक है? और इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इंटायर सर्कल को मैं ही अकेली कवर कर, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई हैव दिस एक्सपर्ट विद मी, राइट? अमन, हु विल बी लीडिंग दिस, शी इज अ को-फाउंडर, शी इज अ माइंड बिहाइंड दिस किड्स वाला सारा चीज का। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, और अगर उन्होंने उस एज में बच्चों के साथ अपना वो इमोशनल बॉन्ड नहीं किया तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है उनको इतना कंफर्ट और वो स्पेस देने में टू द चाइल्ड टू ओपन अप। But when they get that space, they easily get opened up and they get that environment to becoming disciplined, right? Becoming aware कि नहीं, मैं भी मम्मी को ये चीज एक्सप्रेस करके बता सकती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। So they don't know how to convey their emotions to their parents. They only know गुस्सा होके बोलना है, क्योंकि they've always seen their mothers talking in the anger tone. जब भी कुछ नहीं करी तो गुस्से में या चिल्ला के या ऐसा करके हम बोलते, कमांडिंग, अथॉरिटेटिव, पेरेंट अथॉरिटी के साथ। एंड दिस इज द बिगेस्ट गैप विच वी हैव ट्राइड टू सॉर्ट इट आउट। सो यस प्रियंका, थैंक यू सो मच रितिका फॉर आस्किंग, एंड आई होप यू विल ट्राई दिस टाइम कि उसके साथ ज्यादा पुशी मत होइए ऑल द टाइम। पढ़ाई एक मतलब, स्टडीज आर नॉट ओनली द थिंग टू बी, जिसपे फोकस करोगे वो चीज ग्रो करेगी। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने पे फोकस करोगे तो वो ग्रो करेगा। उसके साथ उस बेंच पे बैठ के साइलेंस रह के सुनने की कोशिश करोगे कि मेरा बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो ग्रो करेगा, राइट? सो होप वी वर एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। सो यस प्रियंका, वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन नाउ, इफ देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन। या हाँ, प्रियंका, वन गो क्वेश्चन। अहेड। अभी एक्चुअली फ्लू के साथ क्या होता है कि जैसे अगर हम उसको, मतलब कई बार मैंने ऐसा देखा है कि शी यूजेस हर लेग्स टू फाइट यू। मतलब जैसे हम उसके पीछे अगर बेटा, उसको कपड़े मम्मा पहना को रहे 10 हैं मिनट्स चाहिए, 10 तो मिनट्स में मम्मा इज कमिंग। वेट, या प्लीज गो अहेड। तो जैसे तो फिर वो ऐसे मतलब आपको मतलब लेग्स मारेगी कि नहीं मेरे को नहीं पहनना, या फिर मतलब ये एक सिनेरियो है कि वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें वो लेग्स यूज करते हैं। अभी रादर अभी हाफ एन आवर बैक, मतलब थोड़ा टाइम पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले, आई वाज लुकिंग एट माय कैमरा, घर के कैमरे में ना। तो अभी हमने न्यू मेड रखे हैं, तो मैंने देखा कि वो उसके साथ भी ऐसे ही कर रही थी। तो मेरे पास टाइम नहीं लगा घर में बोलने के लिए कि भाई उसको देख लो कि उसको क्यों मार रही है। बट उसका एक मैकेनिज्म हो गया है कि लेग्स यूज करने का। मतलब हिटिंग। हम उसको कई हिटिंग, तो हम उसको कई बार बोलते हैं कि वो हमें दर्द हो रही है, ऐसे मेरे को चोट लग रही है, आप ऐसे क्यों मार रहे हो ऐसे करके। बट मतलब प्रियंका, दिस वो इज उसको रजिस्टर नहीं हो एग्रेसिव रहा। टैंट्रम्स, राइट? दो तरह के टैंट्रम्स होते हैं, राइट? वन इज जिसमें नॉर्मल बच्चा नीचे लिटता और वो करता है, सो दिस इज अग्रेसिव टैंट्रम, राइट? क्योंकि जब वो अंदर का जो चीज चाहिए वो नहीं समझ आ रही, तो हिटिंग, हिटिंग इज द नेक्स्ट थिंग, राइट?
सो इसमें आई हैव आल्सो कवर्ड दिस इन चाइल्ड बिहेवियर बंडल टैंट्रम वाले इसमें। तो जब बच्चा हिटिंग वाला टैंट्रम पर आ जाता है ना, so there is a very different thing to have it. I mean, maybe you can add it to it, but this is one of the बट strategies maybe you शी might be लाफ्स, having शी more. लाफ्स वायलेट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में ऐसे कर लेती है, वो खुश है, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है कि दिस इज समथिंग टू एंजॉय। तो ऐसे वाला It's एक्सप्रेसिव, like इवन something अगर to वो खुश give. में भी हाँ. हाँ, तो उसमें क्या कर सकते हो ना, अगर वो खुश भी है या गुस्सा भी है, लेकिन वो जो मोमेंट है दैट इज ट्रबलिंग समबडी, ओके, उसके लिए, लेकिन वो कई बार बहुत जोर से लगता है अगले वाले को भी। सो इन हाँ दैट जी। मोमेंट यू जस्ट हैव टू होल्ड इट जेंटली। अब वो बहुत खुश है तो आप बहुत जेंटली होल्ड करोगे इसको। ओके, आई नो यू आर वेरी हैप्पी, बट यू नो व्हाट, अनकॉन्शियसली आप इतनी जोर से मार रहे हो कि लग रहा है। एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस, यू डांस, गिव द ऑल्टरनेटिव, व्हाट आई कैन डू। मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही हैं, राइट? उस टाइम पे वो खुश है लेकिन ऐसे हो रहा है, तो उसमें बहुत जेंटली पकड़ के, मुझे पता है वो बहुत खुश हो, बट यू नो व्हाट, आप इतनी खुशी में इतना मार रहे हो कि मुझे इतना ज्यादा लग रहा है ना। अगर किसी चीज पे जिद करके गुस्से में भी मार रही, बिकॉज दैट्स अ मोमेंट, राइट? तो जब वो वाला अगर फेज आ रहा है किसी चीज पे, ऐसा होके एंग्री होके भी शी सिटिंग, देन things would be same. You will hold the hand and you will say, it's okay to be angry. I know you're not getting it, but I won't let you. ये कहीं लिख लेना. These are the words exactly. I won't Yes. let you to hit someone. I will not say don't hit. I won't let you. उस टाइम पे as a parent you have to step into to stop that aggressive tantrum. There's a difference. तो टैंट्रम और ये दो तरह के होते हैं। तो जब बहुत जॉली मूड में कर रही है तो उसी चीज को बहुत सिंपली बोलो, आई नो आप कितने खुश हो लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, बट जब आप इतनी खुशी में ऐसे चला रहे हो तो मुझे लग रही। सो मैन, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, मे बी यू माइट आल्सो बी हैविंग, सो प्लीज डू फील फ्री। No, it's absolutely well explained, Jatinder. Yes, even this is what I would like to share in my own words. But yeah, this is what we actually have to keep a clear boundaries. और बहुत फर्मली, कभी हमें बहुत फर्मली और कभी बहुत प्यार से हमें उनको, बट ये नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया और फिर एक बार उसको ओके एक्सेप्ट कर लिया। इफ यू आर ड्रॉन अ बाउंड्री, स्टिक टू इट। फिर आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि अभी कीप एकदम इट से एवरी आपको टाइम। यस, ये ऐसा नहीं कि एकदम से आपने एक बार बोला तो बच्चे को रिकॉर्ड हो गया एंड वो हमेशा याद रखेगा। तो हो सकता है बच्चे थोड़े दिन बाद फिर से वही बिहेवियर, क्योंकि वो तो बिहेव हो गया ना, अभी अब उसकी हैबिट बन गई है। तो मे बी इट विल रीअकर मेनी टाइम्स, बट यू हैव टू कीप अ चेक। नहीं मतलब नहीं, बिकॉज वी कैन इजिली मोल्ड द हैबिट्स ऑफ द चाइल्ड एट दिस यंग एज। इट विल इजिली वी टेक कैन अराउंड 1-2 इट विल months। मतलब टाइम। यस। ऐसा नहीं है कि इसको हमने आज सिखाया और अगली बार मैं ही बोलूं कि यार मैं तो थक गई हूं। नहीं, आप क्या थके, आपने बस एक बार किया। आप कम से यस, कम अगर आप उस चीज को कीप इट अपने इन अ बच्चे के, रूटीन। हाँ, यस। यू आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट, यू आर वर्किंग अगेंस्ट दैट बिहेवियर। योर चाइल्ड इज अ गुड चाइल्ड, अब आप एक यस। बिहेवियर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो वो बिहेवियर बनने में भी टाइम लगा, अब उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा, तो उसकी अनलर्निंग में भी टाइम लगेगा। क्योंकि अगर इतना यस। इजी होता तो हम सब अपनी आदतें बहुत जल्दी बदल लेते, राइट? सो इट्स नॉट दैट इजी, इट नीड्स अ प्रैक्टिस, इट नीड्स बार बार का रिमाइंडर, राइट, कि ये ऐसे करना है, अवेयरनेस, राइट? सो दैट यू कैन ट्राई विद कूल। Okay. So yes, Vishali, you can unmute yourself Yes. and ask Vish. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, आजकल क्या हो रहा है ना, हर चीज से खुद करनी है। मतलब विराट इज लाइक कि मैं करूंगा खाना बनाना, स्नैक्स बनाने मैं बनाऊंगा, घर में खाने के लिए क्या बनेगा मैं बताऊंगा, नहाना सुबह, मतलब सुबह सुबह तो ना स्ट्रगल हो गया। आज तो ना मैं खुद नहाऊंगा, मैं खुद कपड़े डालूंगा, और वो खुद में इतना टाइम, मतलब ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, अगर वो खुद कपड़े डालेगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इतना रशी हो जाता है ना, फिर लास्ट में मुझे तब इसको खाना भी खिलाना है। अ, मतलब वो चीज काफी रशी हो रही है, उसको कैसे पावर हील डाउन स्ट्रगल है अभी, करें। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया, डिक्लेरेशन टू द एंटायर हाउस है अभी, राइट? सो दिस फेज कम्स फॉर एवरी चाइल्ड, आप पे करना, राइट? अपी some people say like that, na, I want to do it all by my own self. So yes, I'm gonna take that up. Maybe if I want, I'll add what is coming in my So mind. here, Vishali, I Hi. completely relate to you, dear. I am undergoing the same situation. Trust me on that. I am not exaggerating, but my morning was just like that today. So it's the same power struggle happening with me. Like past 2 days, okay, I have to get ready, I have to dress up. और हो नहीं रहा है, खुद से नहीं हो रहा है. I understand. I completely understand your pain, Vishali.
Yeah. अब So, लास्ट में क्या होता है ना, मेरे को लगता है फिर मतलब एंड में क्या होता है ना, मैं उसको बोलूंगी रश में भी, रात जल्दी करो आज ये भी करो, होते और हैं फिर मैं उसको फिर वो सेंस मतलब वो जल्दी वाली सेंस में नहीं भेजना चाहती मतलब, और इन एनी केस फिर पुश वो पुश एंड में एंड वाली, अप yeah. लाइक दिस ओनली। अब क्या करूं? See, what I am doing right now, this is what we are doing as in couple also. Like, एक दो दिन होता है, ठीक है, एक दो दिन हम भागे दौड़े बहुत. But then, see, we start with my daughter and we asked her, okay बच्चे, आपका ये टाइम है, आप ये बताइए कि सब कुछ आप नहीं कर सकते हो. You please let me know what are the things you need my help in, right? क्योंकि वो सब कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे. It's a fact, right? We can't be doing it. So what we can do is we can keep a clear, healthy boundary again. हम उनसे डिस्कस कर ले, प्रायर डिस्कस कर लें कि ओके ये आपने करना है, आप करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है. लेट्स लर्न इन द इवनिंग फर्स्ट. बट ना फिर ये देखते हैं कि इंस्टेंट हम इसको मतलब, स्पीड अप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. So always the talking thing will work wonder. For me, I'm doing it myself and I have seen the results. उसको थोड़ा सा काम कर दो, कई बार हमें लगता है वो एंग्री हो जाते हैं, फिर उसको तो आराम से आप होल्ड करके आप उनको बोल सकते हैं लेट्स डू इट टुगेदर. Few things you can do it, few let mama do it, and together let's see we'll be able to complete our task in time or not. कुछ उसका एक गेम तरीके से बना लो कि अच्छा हमारा ये टास्क है, हमने let's win this game or something like. इसको फन वे में करके देखेंगे तो I think it will be helpful to you. या अब जहां तक बात है, अपने आप नहाना सब कुछ करना, उसको बोलो जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, 5 डेज ही वर्किंग है स्कूल का, तो टेल दैट कि विराज उस दिन सब कुछ आप करो, उस दिन मैम मम्मा नहीं रोकेगी. या डू समथिंग, बिकॉज सी अभी मुझे पता है विराज, आई नो पर्सनली ऑल्सो, राइट? राइट, सो विराज को हमने देखा है, थोड़ा टाइम लगता है, बट इफ यू विल कम अप विद दीज थिंग, लाइक है ना, टीम अगेंस्ट दैट. अब उसको पता है कि स्कूल में तो एक टाइम होता है, तो पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा, राइट? तो ठीक है विराज, छुट्टी वाले दिन हम आराम से कर सकते हैं, हमें कहीं पहुंचना नहीं है, तो उस दिन सारा काम आप कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो हमने क्या खाना है छुट्टी वाले दिन. लेकिन फॉर नेक्स्ट डे हम रात को डिसाइड करके सोएंगे कि हम क्या खाएंगे. ही जस्ट वॉन्ट टू टेल दैट ना, उसको बोलो कि यही दो ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें से ही कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो दोनों में से क्या बना देकर. ठीक अगेन है, मतलब विन विन इंस्टेंट सिचुएशन फॉर आया अ आज, पेरेंट. आज सुबह इंस्टेंट आई ये चीज, मतलब अभी और इंस्टेंट की आएगी, मेरे को अभी और आएगी, वो बिकॉज तो ही वांट आएगी कि मैं कर आएगी सकता हूँ मम्मी, एग्जैक्टली. यार मैं कर सकता हूँ. तो हमें बताना है आप कर सकते हो, आई नो दैट, आई नो आप कितने अच्छे से कर सकते हो, बट पता है स्कूल वाले राइट, दिन ना थोड़ा सा जल्दी होता है, तो उस दिन क्या करेंगे, उस दिन मम्मी ये कर लिया करेगी आप ये, ताकि हम लोग स्कूल ना इस टाइम से मिले और आराम से गाना सुन के स्कूल जाए. अदरवाइज भागना पड़ेगा, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं आपको ऐसे स्कूल छोड़ती हूँ. बोल दो आई लव यू गोइंग हैप्पी हैप्पी, हम स्ट्रेस में नहीं जाएंगे. लेकिन छुट्टी वाले दिन ना हम सब काम विराज करें. उस दिन मम्मा कैन अलाउ एवरीथिंग. उस दिन मम्मा की अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप मांग लेना, नहीं चाहिए होगी तो आप बोल देना नहीं मम्मा मुझे नहीं चाहिए. थोड़ा मेसी होगा घर, बट उसको नहीं इट्स समझ आ ओके, जाएगा. हाँ ठीक है ठीक इट्स है, ओके, राइट? इट्स हाँ ओके, वी इट्स हैव टू ओके, मेक सर्टेन थिंग ओके. अब सब हाँ चीज क्लीन रख के तो नहीं कर सकते, हाँ लेकिन इट्स छुट्टी ओके, वाले दिन ही विल से कि अच्छा मम्मी पूरा मना नहीं कर रही, मम्मी कह रही है कि बस स्कूल वाले दिन ऐसे कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ. फिर वो सैटरडे का वेट करेगा, Just मम्मी sense सैटरडे को कर sense of सकता हूँ ना, आज आप authority. सारा कुछ कर दो. हाँ वो करता है कभी, Yes. तो ऐसे वो ही ही विल करता है कम वो। कि सैटरडे संडे को तो मेरी पावर है, तब मैं कर. सो जस्ट डू दैट, इट विल वर्क वंडर्स, इट विल मतलब वो ठीक हो जाएगा. एंड ओके ओके kudos टू यू, आई सी ही इज वेरी वेरी काम. अभी मैंने स्कूल में भी देखा, जैसे छुट्टी में भी मैम, पेशेंटली मैं वेट तो करते हैं आपके आने का. आई मैम सी द सिर्फ मैं चेंज. उसकी भी, मैं तो अपनी भी मतलब, मैं भी मतलब आई हैव शिफ्टेड सो मच, एंड ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड ही इज लुक फॉरवर्ड टू गो टू स्कूल. मतलब वो मुझे खुद बोलता है कि मेरे को स्कूल जाना है, मतलब लिटरली, और मेरे को बोलेगा आफ्टर क्लास, आज तो मम्मा प्राउड ही हो गई थी मैम मेरे से। मैंने कहा, "ऐसा सी ना, तो, थिंग्स वर्क फॉर बेटर तो विशाली, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड मैम विराज, रियली, पता है राइट? मैं आज आते हुए भी ना मैं यही सोच रही थी, मतलब जस्ट डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल द पर्सन, मतलब वो कैसे कैसे, आपको भी पता है कहाँ से कैसे कैसे रास्ता, मतलब यू नो एवरी बिट ऑफ इट, कि आई एम कैसे सुपर क्या क्या डुपर होता प्राउड है। ऑफ यू. एंड दैट सी दीज आर द हम्म, phases which come, और हर के लिए कुछ अलग लेवल के आते हैं, राइट? सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू सी विराज, वो आराम बट से मैम उसने वो. व्हाट आई वाज, मैं तो एस्केप रूट ही ढूंढ रही थी, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि आपका ही था कि नहीं, जस्ट स्टे हियर एंड जस्ट पुट योर एफर्ट्स ऑन इट, मतलब रियली, I'm मतलब just नहीं the तो channel again. I'm just the channel.
It was just a way shown by God to you कि सी sometime turbulence आती है, उससे भागना नहीं है. मुझे मेरे बच्चे की काबिलियत पता है. I have to trust in my child first before anybody in the world trust. और वो बहुत अच्छा बच्चा है. वी नो दैट. कई बार आपका ना ओवर स्मार्टनेस एक बच्चे की, ओवर एक्टिविटी एक बच्चे की ही उसके लिए वो बन के रह जाती है कि टीचर्स कांट हैंडल इट इन अ वे, राइट. और वो हाँ, इतनी right, right. यंग एज में इतना कुछ कर लेता है. सुपर डुपर प्राउड गाइस. सो थैंक यू so much Thank for you. joining in today, and hope you got lot of your answers. So you can watch the recording. और प्लीज एक चीज मैं यहाँ पे एक फोटो खींच लूं और इसको मैं फीड पे डालने वाली हूँ. Do share your feedback. And so it was amazing. Thank you so much, Aman, for joining us. And such a heart opening insights. Maybe जब हम इन questions को वापस कोई सुनेगा भी, so they will come into that zone and they will reach out to you. How can they reach out, Aman, if they want, if they have any questions? So regarding their kids, if they want to ask any time, any point in time from you. Yeah, we can just circulate a Google form, Okay. and I will just post that and just give Okay. you. So we will also post that in description as well in the feed and the groups, right? Yes. So Yeah, you, yeah, yeah, you can also post here in the, if you're having it, you can put it in the chat box so that किसी को अभी वो भरना हो. So that's how you can reach out, Aman, for any help you need regarding the kid, right? yeah. So welcome you all to, while again not lose this opportunity to invite you to Circle of Care, because no pressure, no push, just an open invitation to explore this journey deeper with us, where we are coming with a complete circle. और कोई doubt है तो don't hold it. Batches starting from 1, limited seats हैं. Be in the foundational batch and take the maximum out of us. So thank you so much for joining us today. Let's keep building a better emotionally strong future, one family at a time. और वो है हमारी खुद की, वहां से शुरू करते हैं. So do drop a heart if you like this session and let me take a picture. Switch on कर दो.